3 on page number 156. The sum is like this. A company issued 80,000 equity share of rupees 10 each at 20% premium. Now the amount payable per share was as under. So पहले तो कंपनी ने इश्यू किए हैं. So issued shares are 80,000. ठीक है. और एप्लीकेशन, allotment, first call and final call. Capital plus premium is equal to total. So application में 4 rupees capital, no premium. Allotment 5 including premium. तो 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम किसी और में है नहीं, तो प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट में होगा. सो कैपिटल वुड बी 3 रुपीज. फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, नो प्रीमियम. सो ऑब्वियसली बैलेंस वुड बी माय फाइनल कॉल. ठीक है, इसमें उन्होंने ऐसा बोला है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. सो कितना बचा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 रुपी बचा. सो 1 रुपी इज विद द फाइनल कॉल. ओके, देयर इज नो प्रीमियम, सो टोटल 1. So आप चेक कर सकते हो, the total amount to be called up per share is 12 rupees including premium. Again, now the company received application. Okay, so shares applied for. It is 1,40,000 shares. 1,40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई. And the allotment of shares was made as under. So let us first of all draw the table. So the table would go like this, as हम हर एक समय करते हैं, बराबर. And you see to it that the table is perfect, because अगर टेबल में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी पूरे सम में. ठीक है. So this is shares applied for, share allotted, amount received with application, application, allotment, first call, final call and bank. Okay. Now so number of shares applied, number of shares allotted, amount received with application, application amount, allotment, first call, final call, bank, that is refund. ठीक है. So कैसे अलॉट किए हैं वो मैं आपको बताता हूं. आपको देखो 2 कॉलम बना के दे दिया, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. So those who have applied for 10,000 shares. अच्छा, before that amount received with application is 4 rupees. ठीक है. एंड बाकी जगहों पे यहाँ पे 4 रुपीज, यहाँ पे 5 रुपीज, यहाँ पे 2 रुपीज और यहाँ पे 1 रुपी. ठीक है. सो ये रेड वाला रेड से मल्टीप्लाई होगा और ये ब्लू वाला ब्लू से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. सो ध्यान रखना बेटा. तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 10,000. अलॉटमेंट नील. अलॉटमेंट नील है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा. एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन? 40,000. and the whole 40,000 rupees are being rejected. Okay, जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया
उनको पूरे 50,000 शेयर हमने अलॉट कर दिए. So 50,000 into 4. So amount received with application 2 lakhs. And allotment is also 50,000. So 50,000 multiplied by 4, 2 lakhs. There is no advance and there is no refund as such. And the rest 80,000 shares, उनको हमने allot किए 30,000 shares. So what is the amount received with application? बोलो 80,000 multiplied by 4. 3,20,000. Then application amount would be 30,000 into 4. That is 1,20,000. So 320 और 120. तो still there is advance of 2 lakhs. ठीक है. अब 2 lakh में से 30,000 into 5. Okay. So 1,50,000 और यहाँ पे मतलब इन लोगों ने पूरा का पूरा allotment भर दिया. So 150 and 120, 270. Still there is 50,000. So this 50,000 will be advance in the first call because first call में मिलना चाहिए 2 into 30, 60. 60 में से advance है 50. So 50 हमने यहाँ पे consider कर लिया. And now let us make the total. So this total would be 8 और 9, 1,40,000, 5 और 3, 80, 5, 60, 5,60,000 रुपीज मुझे मिले विथ एप्लीकेशन. उसमें से 3,20,000 हम लोगों ने ट्रांसफर किए एप्लीकेशन में, 1,50,000 हमने ट्रांसफर किए अलॉटमेंट में, 50,000 एडवांस ले लिया हमने फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में कुछ भी नहीं है और बैंक में है 40,000 रुपीज. Okay, so this is your table. Okay, now if you are having any questions, you can ask me now. By that time, I will prepare the table. Yes, please go ahead. सर 80,000 में से 30,000 शेयर अलॉट किए तो बाकी के रिफंड नहीं करने? आपने क्लियर शायद पढ़ा नहीं बेटा. Excess application money on pro rata was applied towards the sum due on allotment call. मतलब जो बाकी के पैसे बचते हैं, ये 80,000 को 30,000 शेयर जो हमने दिए हैं, जो भी पैसे बचते हैं उनको रिफंड करना ही नहीं है, उनको आगे कॉल देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, एडवांस गिनते जाना है. आपका फर्स्ट लेक्चर है आज? नो सर. हाँ, तो ऐसा ही करते थे ना. रिजेक्ट में रिजेक्ट बोला होगा और बाकी जो शेयर्स में अलॉटमेंट है वो प्रो रेटा पे देना है, मतलब उनको रिफंड नहीं करना है. जब तक उनके कॉल्स पूरे नहीं हो जाते बराबर, तब तक वो आगे पैसा जो है उसको ट्रांसफर करते जाना है. इज इट क्लियर? यस सर. तो वी हैव टू कंसीडर देम एज एडवांस. उसको एडवांस बोलते हैं बेटा. दैट इज कॉल्ड एडवांस. कि उतना पैसा हमें मिल चुका है. तभी तो ये चैप्टर में 12th से अलग क्या है? 12th से अलग यही तो है. 12th में ऐसा कुछ नहीं होता था. 12th में हम लोग सिर्फ सीधा एंट्रीज पे ही ध्यान देते थे, लेकिन यहाँ एंट्रीज के साथ साथ आपको ध्यान देना है टेबल के ऊपर भी, क्योंकि जो टेबल है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना. अब यही टेबल से मैं अमाउंट उठाऊंगा और उसकी एंट्री करूंगा. टेबल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, इन द सम. और एक मिस्टेक अगर आपसे हो गई, एक सिंगल मिस्टेक ऊपर टेबल में या सम समझने में भी अगर दिक्कत हुई, तो पूरा सम जो है इट वुड नॉट फेच यू फुल मार्क्स. और ये 14 मार्क का सम आता है कंपल्सरी, बराबर. एक सम इसका आता ही है और ऐसा ही आएगा जैसा मैं आपको करवा रहा हूं ना, वैसे ही सम आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट करना, बराबर. और हमने ऑलमोस्ट सारी मेथड के सम्स वी हैव कंसीडर्ड. और जो सम मैं करवाता हूं आप देखना उसी टाइप के सम आई गिव यू इन होमवर्क, सो दैट आप उसको रिवाइज भी कर सको और जो सम मैं करवाता हूं वो आप अपने आप कर भी सको. ओके, अब हम जरा सम आगे पढ़ लेते हैं. लेट अस रीड द सम. किसने क्या पे नहीं किया वो भी देखना पड़ेगा इसमें. सो आगे सम पढ़ते हैं. आगे सम में ऐसा लिखा है, राघव फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. अब कोई मुझे बताएगा राघव कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता होगा?
राघव failed to pay allotment and call money. कैटेगरी ये बी, बी कैटेगरी, बी वेरी कैटेगरी। गुड, वेरी गुड। देखो ये हम नाम दे देते हैं, इन्होंने नाम नहीं दिया, ए बी सी। अच्छा, राघव ने अलॉटमेंट नहीं पे किया, इसका मतलब राघव इस कैटेगरी को बिलोंग करता होगा। क्यों? क्योंकि जो सी कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं उन्होंने सारे के सारे पैसे अलॉटमेंट के पे कर दिए, इसका मतलब राघव सी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता। सो राघव कैटेगरी बी को बिलोंग करता है। सो उसने 1000 शेयर पे अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं पे किया। एंड राजीव who applied for 4000 shares, now please everybody concentrate, and allotted share on pro rata. So यहाँ पे जो राजीव है वो बिलोंग करता है कैटेगरी सी को। fail to pay the money due on first and final call. Shares of Raghav and Rajiv forfeited after final call. तो दोनों के शेयर्स हम लोग फाइनल कॉल के बाद forfeit कर रहे हैं, ठीक है? And 2000 shares were reissued, including all the shares of Rajiv at 10% discount. So let us start. बोलो सबसे पहली एंट्री, यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। So let us start. बोलो बेटा, सबसे पहली एंट्री, द फर्स्ट एंट्री वुड बी पैसा आया, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना? कितना पैसा आया? तो लेट मी टेक यू टू द टेबल। यस, सो टेबल इज विजिबल। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, total amount received is 5,60,000 as you can see in the table itself. अब 560 जो अमाउंट मिली है उसमें से अब हमें बाकी जगहों पे ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 5,60,000 टू शेयर कैपिटल, इसमें कोई प्रीमियम नहीं है तो टू शेयर कैपिटल 3,20,000। आपको पहली एंट्री टेबल में से ही मिल जाएगी अमाउंट, मतलब टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस, $1,50,000, टू शेयर फाइनल कॉल एडवांस 50, एंड टू बैंक जो हमने रिफंड किया है वो। सो वी हैव रिफंडेड ओनली 40,000 rupees. Okay, any questions in for this first entry? You can ask me. अब बारी अलॉटमेंट की। अब अपने अलॉटमेंट मंगवाएंगे। बेटा ध्यान रखना अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो शेयर allotment account will be debited to share capital and to securities premium. ओके, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख कैसे? 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए। ओके, कैपिटल में कितना आएगा? सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज कैपिटल एंड 2 रुपीज प्रीमियम, सो इट इज 2,40,000। ये मुझे मिलना चाहिए। दिस इज द अमाउंट दैट आई शुड रिसीव। नाउ देयर इज अ कॉल्स इन एरियर्स बाय whom? बाय राघव। राघव failed to pay allotment and call money on 1,000 shares. So Raghav belong to B category. Let me take you to the B category shareholders. The B category shareholders were allotted in full. इसका मतलब राघव को हम लोगों ने 1000 के सामने 1000 शेयर ही दिए होंगे और उसने वो पूरे 1000 रुपए हमें नहीं दिए हैं। तो the fourth entry would be bank account will be debited. ठीक है, calls in arrears account debited. ओके, इसकी अमाउंट मुझे पता है कॉल्स इन एरियर्स की
1000 shares of Raghav at 5 rupees, so 5000, and 2 share allotment. Now just a minute, hold on. बेटा मुझे अलॉटमेंट में मिलने चाहिए थे 4 लाख, बट 4 लाख में से ऑलरेडी 1.5 लाख मुझे एडवांस मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 4 लाख माइनस 1.5 लाख मतलब अलॉटमेंट में मेरे को मिलना चाहिए 2,50,000। उसमें से 5,000 मुझे नहीं मिले, तो मुझे 2,45,000 रुपीज मिल चुके। Okay, so just the difference amount I have to take. Okay, after allotment, now I would go for the final call. अब final call में भी calls in areas है, so ध्यान रखना। So entry number 5. Share, sorry, final call के पहले first call है। So share first call account debited to share capital account. There is no premium as such, तो मुझे 80,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मिलने चाहिए, मतलब मुझे मिलना चाहिए 1,60,000 रुपए। ओके, अच्छा, अब इसमें भी कॉल्स इन एरियर्स है, सो बैंक अकाउंट डेबिट करने का पहले, इसकी अमाउंट हम बाद में ढूंढेंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ये अमाउंट मुझे मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं। टू शेयर फर्स्ट कॉल, अच्छा फर्स्ट कॉल में भी एडवांस है बेटा। अच्छा कितना एडवांस है? सो 1,60,000 मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे देखो मुझे 160 मिलना चाहिए, उसमें से 50 ऑलरेडी एडवांस है। देखो आई शुड रिसीव 160 बट ऑलरेडी 50 इज द एडवांस, so the amount received with the first call should be 1,10,000। अब उसमें कॉल्स इन एरियर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राघव की बात कर रहा हूं पहले मैं। ओके, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट राघव। राघव का सीधा हिसाब है, राघव अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड 1000 शेयर्स, सो 1000 शेयर्स पर मुझे सीधा हिसाब है 2 रुपए नहीं मिले, सो राघव के मेरे को 2,000 रुपीज नहीं मिले। Am I clear to everybody? अच्छा, अब मैं बात करता हूं, दूसरा कौन है भैया? राजीव। अब राजीव के कॉल्स इन एरियर्स के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि राजीव जो है वो सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब जो सी कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं उनको हमने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट दिया है। कैसे? Those who have applied for 80,000 shares, we have allotted 30,000. So 80 पे 30, 80,000 पे 30,000. Okay. So those who have applied for 80,000 shares, we have allotted them 30,000 shares. मतलब 8:3 का रेशियो हुआ अगर रेशियो वाइज देखने जाओ तो। और अपना ये जो राजीव है उसने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसको हमने कितने शेयर अलॉट किए होंगे? 1,500। Very good. 1,500 Share allotted to Rajiv would be 1,500. अब मुझे ये देखना है कि ये जो सी कैटेगरी के लोग हैं, मैं आपको फिर से टेबल में ले ये चलता हूं, ये जो सी कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं बेटा, उन लोगों ने फर्स्ट कॉल में भी एडवांस दिया है 50,000 रुपीज का, तो इसका मतलब राजीव ने भी एडवांस दिया हो सकता है उसमें। अब राजीव का एडवांस कितना है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, सो दैट वी विल हैव टू कैलकुलेट। ओके, हाउ वी विल कैलकुलेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राजीव की बात कर रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। बोलो कितना दिया था राघव ने एप्लीकेशन के वक्त? तो राघव ने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसमें से उसने 4 रुपए एप्लीकेशन के वक्त दिए, मतलब कितना हुआ? उसने 16,000 रुपीज दिए होंगे अपने को, उसमें से माइनस शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन में हमने उसको खाली 1500 शेयर अलॉट किए, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका मतलब यूं समझ लो उसका 6,000 रुपए एप्लीकेशन में काटा। अच्छा, उसने अलॉटमेंट भी पे किया, तो शेयर अलॉटमेंट
1500 शेयर पे उसने कितने रुपए दिए अलॉटमेंट के बाद? 5 रुपए। तो 7,500 रुपए उसके अलॉटमेंट के हमने काट दिए। तो इसका मतलब अब जो पैसा बचा है दैट इज एडवांस, है ना, विथ फर्स्ट कॉल। सो द एडवांस विथ फर्स्ट कॉल वुड बी 16,000 माइनस 13,500 करोगे तो यू विल गेट 2,500 रुपीज। ये मैंने क्या ढूंढा? ये मैंने ढूंढा कि राजीव ने, किसने? राजीव ने फर्स्ट कॉल के साथ कितना रुपया एडवांस में दिया है। समझो एक बात, क्योंकि जब तक मुझे ये अमाउंट नहीं मिलेगी मुझे उसका कॉल्स इन एरियर्स नहीं पता चलेगा, बराबर। और यहाँ पे ये सब में नया है कि अभी तक क्या होता था, अभी तक यही चीज हम लोग अलॉटमेंट में करते थे, अब ये चीज हमको फाइनल कॉल में भी करनी पड़ रही है, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ हाउ द फर्दर कैलकुलेशंस वुड बी। नाउ अब मुझे राजीव से कितने लेने हैं? सो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। तो मुझे राजीव से 1500 शेयर पे मुझे 2 रुपए लेने हैं, मतलब मुझे लेने हैं 3,000 रुपए। उसमें से उसने ऑलरेडी कितना एडवांस दिया हुआ है? उसने एडवांस दिया हुआ है 2,500 रुपए। इसका मतलब उसने कितना अमाउंट नॉट पेड है? अमाउंट नॉट पेड ऑन फर्स्ट कॉल 500 रुपीज। अब सोचो ये 500 रुपीज ढूंढने के लिए हमें ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा। तो इसका मतलब राजीव का जो कॉल्स इन एरियर्स है, हाँ, राजीव का जो कॉल्स इन एरियर्स है वो है 500 रुपए। सो 2,000 रुपए राघव के, 500 रुपए राजीव के, ऐसे दोनों के मिला के तुम्हारे जो कॉल्स इन एरियर्स हैं वो हुआ 2,500 रुपीज। दैट इज 1,07,500। सो इतना पैसा मेरे को फर्स्ट कॉल के वक्त मिला होगा। एनी क्वेश्चंस टू एनीबॉडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? यहाँ पे समझ में नहीं आया ऐसा कोई? बराबर। मुझे राजीव सी कैटेगरी के शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, इसीलिए मुझे ये पूरा कैलकुलेशन बताना पड़ा कि जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उन्होंने 30 अलॉट किए, तो 4 में कितना? तो राजीव को हमने 1500 ही अलॉट किए, बट उसने पैसे 4,000 पे दिए। अब उसको रिफंड नहीं करना, जो 16,000 है उसको रिफंड नहीं करना, उसके हमने आगे ट्रांसफर करते गए। सो एप्लीकेशन में 6,000 गए, अलॉटमेंट में 7,500 गए, तो बाकी का 2,500 उसने फर्स्ट कॉल में एडवांस दिया। अब ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल है 3,000, एडवांस है 2,500, मतलब 500 रुपए उसने अभी भी फर्स्ट कॉल के हमें पे नहीं किए। तो 500 राजीव के और 2,000 राघव के, ऐसे मिला के टोटल 2,500 शेयर्स पे हमें पैसे 2,500 रुपए हमें नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हम बात करेंगे फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल थोड़ा पेचीदा है, वो इसीलिए क्योंकि अब जो फाइनल कॉल है उसकी अमाउंट कितनी है? 1 रुपी। हमने किसी के भी शेयर फोरफिट नहीं किए हैं, ध्यान रखना अभी तक। स्टिल वी हैवंट फोरफिटेड एनी ऑफ द शेयर्स ऑफ राघव और राजीव। तब किसी के भी शेयर फोरफिट नहीं किए हैं तो मतलब मैं तो पूरा का पूरा पैसा ही मंगवाऊंगा। सो एंट्री नंबर कौन सी आए अपने? 7। So my entry number 7 would be like this: share final call account debited. सीधा हिसाब है 80,000 shares multiply by 1. Again I am telling you why I have taken this 80,000, because अभी तक हमने किसी के भी शेयर फोरफिट नहीं किए। सब लोगों के पास अपने अपने शेयर्स हैं, वो नहीं पे करते हैं, वो तो उनकी तकलीफ है, अपने नहीं। तो 2 शेयर कैपिटल, बोलो 2 शेयर कैपिटल कितना आएगा? 80,000। अब जब पैसा आएगा तब मुझे बहुत ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। अब बेटा आप देख सकते हो, मैं आपको टेबल पे फिर से ले जाता हूं। जो अपना टेबल है उसमें फाइनल कॉल में किसी का भी एडवांस नहीं है, यू कैन चेक इट। देयर इज नो एडवांस इन योर फाइनल कॉल, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिसने फाइनल कॉल में एडवांस दिया हो। तो यहाँ पे सीधा हिसाब है, जो तुम्हारे 2500 शेयर हैं
2500 शेयर कैसे, 1000 शेयर राघव के, उस पे 1 रुपी बराबर, प्लस 1500 शेयर राजीव के, उस पे 1 रुपी। सो 1000 प्लस 1500 यानी 2500 रुपए तुम्हारा कॉल्स इन एरियल्स है, एंड 2 शेयर फाइनल कॉल। कुछ एडवांस नहीं है तो सीधा 80,000 ही आएगा। सो 80,000 में से 2,500 नहीं मिले, मतलब मुझे मिले होंगे 77,500 रुपीज बराबर। इसमें कोई कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं थी। नाउ आई विल डू द एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। अब दोनों के शेयर हमने फॉरफिट किए आफ्टर फाइनल कॉल, सब में लिखा हुआ है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी हमने सारे के सारे पैसे मंगा दिए, तो सीधा हिसाब है 2500 इंटू 10, 25,000 रुपए। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अब एक मिनट ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने डेबिट किया है सिर्फ और सिर्फ राघव के लिए। राजीव ने तो अलॉटमेंट दे दिया है, तो सिर्फ 1000 शेयर्स पे ही प्रीमियम बकाया था। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000। 2 कॉल्स इन एरियर्स। चलो सारे कॉल्स इन एरियर्स को प्लस करते हैं, एंड 2 शेयर फॉरफीचर। चलो प्लीज टेक ए कैलकुलेटर एंड ऐड ऑल द फॉरफीचर। चलो 2500 विद फाइनल कॉल 10,000 हाँ देख लेते हैं। सर 10,000 हाँ देख लेते हैं बेटा। ओके, फर्स्ट कॉल में 2500 और अलॉटमेंट में 5000। सो 5000 प्लस 5000, so my calls in areas is 10,000. So 2 calls in areas 10,000, 27 minus, so 17,000 is my forfeiture. Yes, any questions to anybody? किसी कुछ पूछना है इसमें? अब हम लोग ये जो शेयर्स हैं उसमें से सारे शेयर्स री इश्यू नहीं कर रहे, वो ध्यान रखना। वी आर नॉट री इश्यूइंग ऑल द शेयर्स, वी आर ओनली री इश्यूइंग 2000 शेयर्स, है ना। उसमें देखो सब में लिखा हुआ है कि शेयर्स ऑफ राघव एंड राजीव वर forfeited आफ्टर फाइनल कॉल एंड 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ राजीव। तो राजीव के 1500 शेयर हमने री इश्यू कर दिए और राघव के हमने 500 शेयर ही री इश्यू किए हैं। तो चलिए अब उसकी एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं। बोलो, व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर दैट अमाउंट कॉल्ड अप? एंट्री नंबर 10। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे री इश्यू किया हुआ है, लिखा हुआ है सम में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। Okay, we have only issued 2000 shares. So 2000 multiplied by 10. So that amounts to 20,000. Okay, 10% डिस्काउंट, इसका मतलब 8 रुपए 9 रुपए मिले होंगे हमको बैंक में। तो 2000 इंटू 9 18,000 और 10% डिस्काउंट यानी 2000 रुपीज विल बी डेबिटेड टू forfeiture account. Okay, any questions to anybody? And now finally we will transfer the amount of forfeiture to capital reserve. So share forfeiture account debited to capital reserve account. अब देखो बेटा, how much amount will be transferred? The amount transfer would be, बोलो कितना होगा amount transfer और कैसे कैलकुलेट होगा वो? किसके कितने शेयर हमने रीइश्यू किए हैं वो बताओ पहले तो। राजीव के 1500, राघव के 500। मतलब राजीव के हमने सारे 1500 रीइश्यू कर दिए, ओके, ऑल शेयर्स। और जो राघव है
उसके 500 शेयर, मतलब उसके हमने खाली 50% शेयर ही रीइश्यू किए। ठीक है, तो अब दोनों के फोरफीचर का बैलेंस कितना है वो अपन जान लेते हैं। ओके, नाउ यू टेल मी, ये जो फोरफीचर है 17,000, उसमें से राघव का कितना होगा और राजीव का कितना होगा? सो सी आई एक्सप्लेन यू। राघव ने कितना रुपया दिया है वो मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया है। सी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड विथ राजीव इज हाउ मच? राघव ने टोटल में कितना पैसा दिया? 4,000. नहीं, राघव ने हमें टोटल कितना रुपया दिया? दैट इज माय क्वेश्चन। व्हाट राघव हैज पेड? व्हाट राघव हैज पेड? Application allotment. एप्लीकेशन। राघव ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे किया। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि राघव ने मुझे 1000 शेयर्स पर केवल 4 रुपए दिए, मतलब उसने मेरे को 4,000 रुपए दिए। और जो राजीव है, हाँ, उसके रिमेनिंग तो 17,000 टोटल फोर फीचर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, सी ओवर हियर, टोटल फोर फीचर 17,000 है। 17 में से 4 गया, એટલે इसका मतलब 13,000 रुपए टोटल। ठीक है, 13,000 टोटल राजीव का फोर फीचर है। ओके, तो ये 13,000 तो मुझे सारे ले लेने हैं, लेकिन जो राघव के 4,000 हैं उसमें से मुझे सिर्फ कितना लेना है? 50%। सो हाउ मच फोर फीचर आई कैन यूज? 13 plus 2, 15. 15 में से आई हैव ऑलरेडी यूज्ड 2, सो द रेस्ट 13,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बराबर है? इसको मैं आपको और सेकंड तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो सी, टोटल फोर फीचर 17,000 है। उसमें से 2 लोग हैं, एक है राजीव और एक है राघव। ठीक है, सब में बोल दिया है कि राघव ने अलॉटमेंट से लेके सब कुछ पे नहीं किया, तो मैं ऐसा बोलूंगा राघव ने 1000 शेयर पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी मतलब 4 रुपए दिए होंगे, यानी 4,000। तो राघव का फोर फीचर 4,000 होगा और राजीव का फोर फीचर 13,000 होगा। सो 13 और 4 मिला के हो गया 17। अब हुआ ये है कि राजीव के मैंने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए हैं, तो सारे रीइश्यू कर दिए हैं तो मुझे पूरा 13,000 यूज करने का। लेकिन राघव के मैंने सिर्फ 50% ही रीइश्यू किए हैं, तो आई कैन यूज ओनली 2,000। द रेस्ट 2,000 रुपीज आई हैव टू कीप फॉर द नेक्स्ट 50% शेयर। सो 13 और 2 ऐसे मिलाकर हो गया 15,000। सो 15,000 मुझे यूज करना है, उसमें से 13,000 में ऑलरेडी 2,000 में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो द रेस्ट 13,000 आई विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा ये जो सम है वो खत्म होता है। एंड नाउ आई ओपन दिस फोरम फॉर एनी क्वेश्चंस।